हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड, अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड प्रेजेंटली एक्सीड्स द नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट्स। एज ऑन 11 जून हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट नंबर की बेसिस पर दूसरे देशों से कंपेयर कर कभी कभी ये बात भी करते हैं कि इस देश में केसेस ज़्यादा हैं, इस देश में केसेस कम हैं। उस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि कई बार ये कंपैरिजन थोड़ा सा मिसलीडिंग, मिसकंस्ट्रूड हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम कंपैरिजन जब भी करें तो हमें उससे कंपेयर करना है जिस देश की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। हम कभी भी जिन देशों की पॉपुलेशन हमारे देश के अनुपात में काफ़ी कम है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हम लोगों के साथ डीजीआई समर साहब प्रेजेंट हैं। आई वुड रिक्वेस्ट सर टू गिव हिज इनपुट्स। Thank you, Love. As you have mentioned, that the cases per lakh population is amongst the lowest in the world as far as India is concerned, if you compare to several countries across, as is shown in this slide. Similarly, the number of deaths per lakh population is also amongst the lowest in the world as far as India is concerned. And this finding is actually corroborated by the serosurveillance which we have undertaken to monitor the trend of this SARS-CoV-2 infection transmission. Now, what is a serosurvey? A serosurvey, we collect blood samples from a general population and test them for IgG antibodies. And if the antibody test is positive, it means that the person has been infected in the past. And what do we expect from these serosurveys? We expect to see the percentage in the general population, who is at a higher risk of getting infection, which are the areas which need more contained efforts, which need to be strengthened. And the objective is to provide scientific guidance from time to time, and that is the purpose of this one of the very early surveys that we have done, and multiple surveys will be done as we go on to guide. And similarly, we have been providing the scientific evidence either through the National Task Force or the Joint Monitoring Group to the government, which is the National Task Force chairman is Dr. Vinod Paul, and the Joint Monitoring Group is chairman of the DGHS, and we've been providing scientific evidence. So now let's come to this serosurvey. So this was the first serosurvey conducted in May in collaboration with the state health departments, in collaboration with the NCDC and the WHO. And basically it had two parts. The first part was to estimate a fraction of population to be infected with SARS-CoV in the general population, and that is the part that is completed at the moment. And the second part is to look at the prevalence of this SARS-CoV-2 infection in containment zones in hotspot cities, and that is ongoing as we speak. Now the data was collected, as I mentioned. We took it a written informed consent and ethics clearance, and 3 to 5 ml of venous blood was taken, and then this sera was evaluated for the Ig antibodies by the ELISA test, and this ELISA test is also being made available to the states to carry out serosurvey in different groups of individuals within their states. Now in this, the part one of the survey, which is complete, we had was a population-based serosurvey in which several districts were studied and divided into 4 groups, and in each group, whether it is 0 prevalence by RT-PCR or 0 to 5 or 5 to 10 or more than 10% per million cases in different districts, were divided into 4 groups, and 15 districts were in each group, and 400 individuals were studied from each district.
And then from each village or urban area, we selected 10 villages and 40 adults, and every household one adult was studied. So we actually studied about 83 districts in the country, and to collect the blood samples and the data from 26,400 individuals. The results were that we found that about 0.73% of the population in these districts showed a prevalence of past exposure to SARS-CoV-2 infection. This means that the lockdown and the containment measures have been successful in keeping it low and preventing rapid spread of this disease over the last 3 months as we speak. However, it means that a large proportion of the population is still susceptible. And which were the individuals which were higher at risk? Risks was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to 1, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. But the good news is that the infection fatality rate was very low. It was 0.08% as far as this 26,000 individuals was looking at the population. The infection in the containment zone were found to be high and variable, and this is still ongoing, and this data is still being looked at. So in conclusion, I would like to say, since a large proportion of our population is still vulnerable and susceptible to infection, we have to work on the non-pharmacological interventions such as physical distancing, use of face mask, hand hygiene, cough etiquette, and urban slums are highly vulnerable for the spread of infection, and the local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected, and efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. So I will stop here, and I'd request Professor Vinod Paul to give his wisdom. Thank you, Professor Bhargav. You can have the last slide on, conclusion slide if possible. So आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट सम्मिलित हैं। उन ज़िलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका महत्व हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कोविड की रिस्पांस को, देश की जो स्ट्रैटेजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है। साइंस हमें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक केंद्र बिंदु है, और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है, जैसे डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा, कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये 30 अप्रैल के लगभग जो स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं ये,
क्योंकि ये स्टडी जो करी गई वो 3rd वीक ऑफ मई में करी गई मोस्टली, और 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी को आने के लिए। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ब्रॉडली, वो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, 5 साढ़े 5 हफ्ते की, वो हम आज देख रहे हैं। तो कम से कम उस स्टेज पे देखें अगर, तो इसका जो प्रकोप है हमारे देश में, इन जिलों में लेस देन 1% पॉपुलेशन में आया है। इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस पैंडेमिक को देश ने रखा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैलता है, जो वायरस की मंशा है वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और उसके बारे में जितना भी हम जानते हैं यही कह सकते हैं कि इस डेटा के बेस के ऊपर कि इसको इस लेवल तक सप्रेस रखा है, इस लेवल पे ये पैंडेमिक हमारे देश में अभी तक मौजूद है 30 अप्रैल की दृष्टि से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी बात उभर के आ रही है, और सिर्फ इस डेटा से नहीं आती, वो जो डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री आपके साथ साझा करते हैं, वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है देश में इस पैंडेमिक की वजह से वो क्लियरली लो है, और ये खुशकिस्मती की भी बात है, और ये भी एक तसल्ली देता है कि अगर हम इस पैंडेमिक में लो मोर्टेलिटी को रखते रखते निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये एक देश के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और इनफैक्ट किसी भी महामारी में और भी कई गोल होते हैं, लेकिन सबसे सेंट्रल जो गोल होता है वो यही होता है कि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो मिनिमम हो। तो इस स्टडी से ये भी दर्शाया गया है कि मोर्टेलिटी लो है, और यही डेटा लव आपसे साझा करते रहते हैं कि हमारे देश का जो मोर्टेलिटी रेट है, और इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो इम्प्रूव फर्दर हो रहा है। अगर आप कंफर्म केसेस की मोर्टेलिटी का डेटा देखते हैं, जैसे 15 मई को 3.3% है, आज हम इसको कंसिस्टेंटली 2.8% देखते हैं। तो और वैसे भी जो प्रदेशों से जो खबर आती है उसको अगर डेटा को देखें तो कंसिस्टेंटली हम मोर्टेलिटी को नीचे रखने में सब इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आ रही है। इसका दूसरा पहलू डॉक्टर भार्गव ने बड़े क्लियर तरीके से पहली लाइन में लिखा है, और वो ये है कि अगर हम इस स्टेज पे थे 30 अप्रैल को, और अभी भी हम अर्ली स्टेज में हैं, तो हमारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है। इसका मतलब कि ये वायरस जो देश में है मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हमने कंटेन किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन होने की वजह से ये ससेप्टेबल लोगों को, हम सबको पकड़ेगा। तो दूसरा पहलू इससे उजागर ये होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं कलेक्टिवली, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क पहनने की बात है, बुजुर्गों को बचाने की बात है, हाइजीन की बात है, और जो बीमार होते हैं उनकी अर्ली केयर सीकिंग और अप्रोप्रिएट एंड क्विक मैनेजमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और टाइमली टेस्टिंग होना, वो सब जो है उसका जो हमारा एफर्ट है वो कम होना तो एक बात है, उसको हमें बहुत गुना तक ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि आगे ये लड़ाई अभी चलेगी, महीनों तक चलेगी जैसे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं बहुत हद तक। हैं प्रॉब्लम्स हैं कुछ एरियाज में जहाँ पे कि वायरस का स्प्रेड ज़्यादा हुआ, वो जोन्स हैं आप सब जानते हैं, और उसको फेस किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए एक मैसेज है इस स्टडी में, इस अध्ययन में, वो ये है कि अब लो हैं, बचे हुए हैं, हम सप्रेस करके दिखा चुके हैं, लेकिन आगे ये वायरस आ सकता है, हम ससेप्टेबल हैं, इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो स्टेप लेते रहना है जिनका कि बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं। और उस उपलक्ष्य में एक जिम्मेवारी सरकार की तरफ और आ जाती है, और वो है कि जो हमारे एफर्ट्स एट कंटेनमेंट है, जो एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी जो लॉन्च करी जाती है, डिजीज कंट्रोल के जो एफर्ट किए जाते हैं, और इसी तरह से जो हेल्थ सिस्टम को सशक्त करके तैयारी करते हैं कि देखभाल की जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में, तो हमें उसको भी और भी सशक्त करना है। जो ट्रेस करना है, इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजीज कंट्रोल के, उनको हमें पकड़ के आगे लेके जाना है। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे सब। और इस स्टडी ने हमारा रास्ता सशक्त किया है, हमें हौसला भी दिया है,
हमें कॉन्फिडेंस दिया है और इसके बेस के ऊपर जो आगे स्टेप होने चाहिए वो लिए जाएंगे, उनका कार्यान्वित किया जाएगा। लेकिन हम सबके लिए 2 मैसेज आए हैं, ठीक तरह से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा और वो बहुत बड़ी बात है इतने बड़े देश के लिए, और आगे भी हमें सबको चौकन्ने रहना है और मिलके इस लड़ाई को जीतना है। धन्यवाद।